सो वी ऑल नो दैट वन पर्सन हु कॉन्स्टेंटली कंप्लेन्स। हर सिचुएशन में प्रॉब्लम ढूंढना होता है। आप कुछ भी गुड न्यूज़ भी शेयर करो, उनका रिप्लाई यही होता है कि बट अभी तो और भी प्रॉब्लम्स आएंगी। लाइक दे हैव टू फोकस ऑन द थिंग जो कि इनकम्प्लीट है। और वो इंसान हर किसी की लाइफ में होता है। कभी कोई फ्रेंड हो गया, कभी कोई कॉलीग, कभी कोई फैमिली मेम्बर। बट द ट्रूथ इज, ये नेगेटिविटी से डील करना भी आपके हाथ में है। बिकॉज इफ यू कीप लिविंग विद इट, देन थोड़ा थोड़ा करके आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, आपकी मोटिवेशन एंड योर zeal towards life will become shallow. And I can tell you this from my own experience of dealing with one such person. And God forbid, God forbid, कभी कभी हम इतने यूज टू हो जाते हैं उस इंसान की प्रेजेंस के कि हमें लगता है कि ये तो अब नॉर्मल है। पर नहीं, नेगेटिव लोगों को टॉलरेट करना नॉर्मल नहीं है। और उनसे डील करना सीखना सेल्फ रिस्पेक्ट का एक पार्ट है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि हाउ डू यू एक्चुअली डील विद नेगेटिव पीपल। नाउ, नंबर 1, recognize when they are around you before it is too late. तो सबसे पहला एंड इम्पॉर्टेंट स्टेप तो यही है कि यू नीड टू नो when these people are around you, because they don't always come shouting negativity from the rooftops. कभी कभी वो एक फेक स्माइल लेकर आपके साथ आ सकते हैं, एक आई एम जस्ट बीइंग टू ऑनेस्ट विद यू के मास्क के अंदर आते हैं। when they subtly insult you or make you feel insecure about yourself. And every time you talk to them, you walk away feeling heavy and drained कि भाई मैंने इससे बात ही क्यों कर ली, जैसे कि आपकी एनर्जी को साइलेंटली ड्रेन कर लिया हो। And that is the worst part. It is so subtle that it takes you sometimes months to realize that why do I always feel worse after I talk to this person. I have been through similar situations as well. There was this time when I was constantly around this person, right, who was so negative about life and everything in general, that no matter what good happened, they would find a way to spin it onto something depressing. And not only that, I mean, they never did anything about their problems, bus complain, complain और complain. Expecting कि मैं हमेशा सुनती रहूं, because this is what they do. Like they want you to understand what they're going through, to be an empath, and you become a emotional sponge to them. But listen, it is not your job to bleed emotionally for people who cut themselves on purpose and call it fate. Recognizing that these people are doing harm to you is a step, because if you don't know what is draining you, you won't be able to protect yourself at all. And once you do recognize them, but now if you're still allowing them access to your mental space, then you are not being loyal to your own, right? You are just causing the damage now. Number 2, it's not even about you. It is their inner insecurity screaming. जब कई बार आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है कोई, बाय पॉइंटिंग आउट एट थिंग्स दैट यू माइट बी इनसिक्योर अबाउट, या बस ऐसे ही कुछ चीज़ों पर आपको पॉइंट आउट करना, लाइक आपकी कभी अपीयरेंस पे कुछ बोल दिया, कभी आपकी स्पेंडिंग कैपेसिटी पे कुछ बोल दिया, पर्सनालिटी या कॉन्फिडेंस पर कुछ बोल दिया, देन 90% ऑफ द टाइम इट्स नॉट even about you. Okay, so you must have heard people saying, or maybe they have said it to you as well, कि इतना स्पेंड करने की क्या ज़रूरत है, इतना ये महंगा चीज़ लेने की क्या ज़रूरत है, and they kind of try to downplay your lifestyle and choices. But if you really think about it, if they had the same wealth and money as you, wouldn't they be doing the same? If they had the same opportunities as you, would they be doing the same? Like,
right now I'm not saying that you need to become cocky or arrogant if you have money, but living a comfortable life is your right. And if somebody shames you for it or anything like that, then it is really just reflecting something that they wish they had. उनका क्रिटिसिज्म, उनका sarcasm, उनके ताने, ये सब उनकी खुद की इनसिक्योरिटीज को एको करती हैं। लोग जो नेगेटिविटी आप पे डालते हैं वो अक्सर उनके खुद के अनरिजॉल्व्ड इश्यूज को रिफ्लेक्ट करती है, आपके नहीं। आई मीन कभी किसी लड़की ने थोड़ा मेकअप कर लिया तो उसके अपीयरेंस पे लोग ध्यान देने लगते हैं, तुरंत कमेंट्स आने लगते हैं कि इतनी फेक लगती है, इसे तो बस अटेंशन चाहिए। बट सच ये है, अगर कोई खुद से अपनी खुशी के लिए कुछ कर रहा है तो उनका दिस एक्ट ऑफ सेल्फ लव किसी और के लिए एक ट्रिगर बन जाता है। वो आपको जज नहीं कर रहे हैं, वो उस लड़की को जज नहीं कर रहे हैं अब जो मेकअप कर रही है, वो अपने स्टैंडर्ड्स का मिरर बना के आप पे थोप रहे हैं। तो अगली बार जब आपको कोई नीचा दिखाए जस्ट फॉर डूइंग समथिंग हार्मलेस, समथिंग दैट मेक्स यू फील गुड, रिमेंबर दिस, ये उनका इशू है, आपका नहीं। सो यू नीड टू emotionally detach yourself from these kind of people. Do not let them absorb your precious energy, and do not absorb their energy, which is never yours to carry. Number 3, create boundaries. कभी कभी लोग ऐसा बोल जाते हैं कि कुछ बहुत ही जो कि इनसेंसिटिव होता है, या डायरेक्टली कुछ ऐसा कर देते हैं जो आपको हर्ट कर सकता है, और उस मोमेंट में रिएक्ट करना नेचुरल लगता है। बट थोड़ा रुक के सोचिए, अगर किसी ने कुछ एब्सर्ड रिमार्क बोला, इंस्टेड ऑफ डिफेंडिंग योरसेल्फ उनसे सीधा पूछिए, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? कैन यू प्लीज एक्सप्लेन दैट टू मी? लाइक आई कुड अंडरस्टैंड व्हाट डिड यू जस्ट से? बिकॉज दिस सिंपल एंड काम क्वेश्चन उन्हें दो चीज़ें सोचने में मजबूर कर सकता है। या तो वो अपने वर्ड्स को जस्टिफाई करेंगे जिसमें अक्सर उनका लॉजिक खत्म हो जाता है, या फिर वो खुद सोचने लगते हैं कि क्या उन्होंने कुछ गलत बोल दिया है। और अगर अगर फिर भी उन्हें समझने में दिक्कत होती है या उनका मूड ही नहीं है समझने का, देन डू नथिंग, you don't need to do anything, stay silent and leave, walk away for your own sanity, because silence is not weakness, it is clarity. अक्सर जब आप कुछ नहीं बोलते, सामने वाले को अपने वर्ड्स का वेट महसूस होने लगता है। और एक और चीज़ जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा, वो ये है कि you need to create boundaries. But when you create boundaries, जब आप अपनी बाउंड्रीज बनाना शुरू करते हैं, तब आप लोगों को ये दिखाते हैं कि वो आपको कैसे ट्रीट करें। और वही मोमेंट होता है व्हेन यू एक्चुअली ट्रूली सी द रियल फेसेस ऑफ पीपल। क्योंकि जो लोग आपके साथ ट्रूली अलाइंड हैं, जो आपके सच में दोस्त हैं, जो आपकी परवाह करते हैं, वो आपकी बाउंड्री से कभी अनकंफर्टेबल नहीं होंगे, नेवर एवर एवर। बट जो लोग आपकी बाउंड्री से दिक्कत में आ जाते हैं, जिनको डिस्कम्फर्ट होता है जस्ट बिकॉज नाउ यू आर रियलाइजिंग योर सेल्फ वर्थ, सो यू आर नॉट ओके बाय बीइंग ट्रीटेड इन अ वे दैट इज नॉट ओके टू यू। मैं भी ऐसी एक सिचुएशन से गुजरी हूँ, राइट? देयर वाज दिस पर्सन हु वाज कॉन्स्टेंटली क्रॉसिंग माय बाउंड्रीज, एंड even after me telling them multiple times that I'm not okay with this thing, मुझे ऐसे ट्रीट किया जा रहा था कि जैसे मैं मैटर ही नहीं करती हूँ। एंड यू नो, ऐसे टाइम पर आपको लगने लगता है कि क्या मैं कुछ ज़्यादा ही रिएक्ट कर रही हूँ, क्या मैं ही कुछ ज़्यादा ही अपने हाई स्टैंडर्ड्स लेके बैठ गई हूँ? एंड द आंसर इज नो, बिकॉज जैसे ही मैंने खुद के लिए स्टैंड लेना शुरू किया, तब this person, like their behavior completely changed, and it changed for the worse, because now I was being gaslighted into believing that I am the problem. उन्हें इतना अनकंफर्टेबल फील हुआ जैसे मैंने उनका कोई राइट छीन लिया हो। और तब मुझे रियलाइज हुआ that sometimes the most powerful thing that you can do is walk away. So
If nothing helps, then instead of dealing with these kind of negative people, just walk away. Because your life isn't for dealing with such people. You have better things to do. So the solution is really simple. आप हर किसी को नहीं बदल सकते, ना ही ये आपकी जॉब है, बट आप अपने आप को किन लोगों से सराउंड करते हैं, आप किस एनर्जी को अलाउ करते हैं, उसका डिसीजन आपके हाथ में है. नेगेटिव लोग कभी कभी चेंज नहीं होते, दे जस्ट डोंट, बट आप उनसे कैसे डील कर रहे हो वो आपकी ग्रोथ को डिफाइन करता है. गार्ड योर स्पेस, चूज पीस ओवर केओस एंड रिमेंबर, जो लोग आपके लाइट से अनकंफर्टेबल होते हैं उनके लिए अंधेरा ही ठीक है, एंड जस्ट लेट गो. एंड विद दैट, आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो.